Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear student, welcome to the online classes of Noor School and College Mansehra. Dear student, in the previous class we have discussed about the main branches of chemistry, which are analytical chemistry. So what is analytical chemistry? What we study in analytical chemistry? Analytical chemistry deals with the study of quantitative and qualitative analysis of matter. Quantitative mean amount of particles present in matter, and qualitative mean which kind or which type of particle are present in matter. Second, we discuss about the industrial chemistry. Industrial chemistry deal with the technique and chemical processes for the preparation of industrial products. And the third one, what is nuclear chemistry? In nuclear chemistry, we study about the nucleus and changes occurring in nucleus and the properties of particle present in the nucleus, and emission and absorption of radiation from the nucleus are studied in nuclear chemistry. And next is biochemistry. What we study in biochemistry? Biochemistry deal with the synthesis, composition and decomposition of substances that are present in the bodies of living organisms are called biochemistry. And the last one is environmental chemistry. Environmental chemistry deal with the interaction of chemical substance or chemical processes with the environment and their impact on it are studied in environmental chemistry. Dear student, we also study some of the basic definitions in previous lecture, which are: what is matter? Matter, anything that occupy space and have mass is called matter. We also discuss about substance. What is substance? Substance is a word that is used to describe a type of matter that has, first one, definite composition, and second one, definite properties. Or you can say that a piece of matter in pure form is called substance, while a piece of matter in impure form is called mixture. Example of substance is water. Pure water is a substance because it have definite properties and definite composition. Now student, in this lecture we discuss about the types of matter and its classification. So basically student, अगर हमारी मैटर की डेफिनेट प्रॉपर्टीज़ होंगी या डेफिनेट कंपोजिशन होंगी तो उसको हम बोलेंगे सब्सटेंस. इफ़ our matter have definite composition and definite property, then it is called substance, and if it does not have definite properties and definite composition, then this is called mixture. ये बात समझ में आ रही है? अगर आपके मैटर की डेफिनेट प्रॉपर्टीज़ और डेफिनेट कंपोजिशन होंगी तो उसको मैं बोलूँगा सब्सटेंस, और अगर नहीं होंगी तो वो होगा मिक्सचर. ये पिछले लेक्चर में भी आपको डिटेल से एग्जांपल के थ्रू बता दिया. स्टूडेंट, अगर आपका सब्सटेंस जो है वो सिंप्लीफाइड हो सकता है केमिकली, अगर आपका सब्सटेंस केमिकली सिंप्लीफाइड हो सकता है तो उसको बोलेंगे कंपाउंड, और अगर आपका सब्सटेंस केमिकली सिंप्लीफाइड नहीं हो सकता तो उसको बोलेंगे एलिमेंट. जैसे कि कंपाउंड आपको पता है स्टूडेंट तोड़ा जा सकता है, तो इसीलिए हम कहते हैं केमिकली कंपाउंड को आप तोड़ सकते हैं, सिंप्लीफाइड हो सकता है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं कि ये सिंप्लीफाइड हो सकता है. एलिमेंट को आप नहीं तोड़ सकते हैं, एलिमेंट को जितना आप तोड़ेंगे वही एलिमेंट के एलिमेंट एटम आपके पास आएंगे, कोई और नई चीज़ तो आपके पास नहीं आती, इसलिए हम कहते हैं एलिमेंट कैन नॉट बी सिंप्लीफाइड केमिकली. इसी तरह स्टूडेंट, मिक्सचर को भी हम डिटेल से देखेंगे कि मिक्सचर की टाइप्स क्या होती है और यूनिफॉर्म कंपोजिशन वगैरह क्या होता है. तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं एलिमेंट, फिर कंपाउंड, और उसके बाद हम मिक्सचर को डिस्कस करेंगे और इसकी टाइप्स पे जाएंगे. तो ये फ़्लो चार्ट जो मैंने आपको शुरू में बना के दिए, इसको आपने माइंड में रखना है, इसी के हिसाब से हम चलेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल हमने मैटर को डिफ़ाइन किया,
उसके बाद हमने सब्सटेंस को डिफ़ाइन किया, सब्सटेंस के बाद हम एलिमेंट को डिफ़ाइन करेंगे, एलिमेंट के बाद हम कंपाउंड को डिस्कस करेंगे। आज के लेक्चर में कंपाउंड तक ही डिस्कस करेंगे, उसके बाद इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिक्सचर को डिस्कस करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। एलिमेंट क्या होता है स्टूडेंट? बाय डेफिनेशंस एन एलिमेंट इज़ अ पेयर सब्सटेंस। फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ अ पेयर सब्सटेंस। जो बातें मैं बता रहा हूँ साथ जो अंडरलाइन करता हूँ उसको आप माइंड में रखें। एलिमेंट जो होता है ये पेयर सब्सटेंस होता है। आप देख सकते हैं इस फ्लो चार्ट में मैंने कहा कि एलिमेंट जो है किसकी टाइप्स में आता है? सब्सटेंस की टाइप्स में आता है। सो इट इज़ पेयर सब्सटेंस, ओके, which cannot be split up into other simpler substance by any ordinary physical or chemical processes। स्टूडेंट एलिमेंट हमारे पास एक पेयर सब्सटेंस है जिसको आप फर्दर स्प्लिट नहीं कर सकते। एलिमेंट को आप फर्दर स्प्लिट नहीं कर सकते, किसी और फॉर्म में नहीं लेके आ सकते। एलिमेंट को आप जितना भी तोड़ें तो आपके पास एलिमेंट किसी और फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होगा। एलिमेंट इसका मतलब टूटता ही नहीं है, क्योंकि एलिमेंट एक ही जैसे एटम से मिलकर बनता है, ओके। इसीलिए हम चाहे फिज़िकल तरीके से या केमिकल प्रोसेस इस पर अप्लाई करें तो हम इसको सिंप्लीफाइड नहीं कर सकते, ओके। इस डेफिनेशन में फिज़िकल वर्ड आया हुआ है और एक केमिकल। फिज़िकल वर्ड कहते हैं फिज़िकल मेथड से। फिज़िकल मेथड फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एलिमेंट को हीट अप कर लूँ या एलिमेंट को क्रशिंग या ग्राइंडिंग वगैरह कर दूँ, इस मेथड को बोलते हैं फिज़िकल मेथड। और केमिकल मेथड वो मेथड होते हैं जिसमें किसी और एलिमेंट के साथ रिएक्ट करवा दूँ या केमिकल प्रोसेस करवा दूँ, इलेक्ट्रॉन शेयर लॉस या गेन करवा दूँ, तो इसको बोलते हैं केमिकल प्रोसेस। फिज़िकल और केमिकल दोनों प्रोसेस से भी एलिमेंट सिंप्लीफाइड नहीं हो सकता, ओके। फर्स्ट ऑफ ऑल एलिमेंट इज़ अ पेयर सब्सटेंस, ओके। व्हाई इट इज़ पेयर? बिकॉज इट इज़ द टाइप्स ऑफ because it have definite properties and definite composition, okay। Second, why it cannot be split up into simpler substance? Because element have same kind of atom and it cannot be split up into other kind of atoms. Some example of element are gold, carbon, calcium, magnesium are the example of element, and these can never be converted into any other simpler substance by any other physical or chemical method or chemical reactions। जैसा कि स्टूडेंट हमारे पास गोल्ड हो गया, कार्बन हो गया, कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, ये हमारे पास एलिमेंट्स की एग्जांपल हैं और इसको आप फिज़िकल या केमिकल कोई भी मेथड इसके ऊपर अप्लाई करें तो आप इसको सिंपलर सब्सटेंस के अंदर कन्वर्ट नहीं कर सकते, ओके। ये बात याद रखनी है कि एलिमेंट कैन नॉट बी स्प्लिट अप इनटू इट्स फर्दर एनी अदर केमिकल सब्सटेंस, ओके। नाउ अब एलिमेंट्स के अंदर क्या होते हैं इसकी बात करते हैं। द फंडामेंटल यूनिट ऑफ एन एलिमेंट इज़ द एटम, ओके। जैसा कि हम कहते हैं कि इन लिविंग बॉडीज़ जो होती हैं वो सेल से मिलकर बनती हैं या एक दीवार ब्रिक से मिलकर आपके पास बनता है, तो इसी तरह एक एलिमेंट जो है वो किस चीज़ से बनता है? एलिमेंट का जो फंडामेंटल यूनिट होता है स्टूडेंट वो है एटम, ओके। एटम इज़ द फंडामेंटल यूनिट ऑफ एलिमेंट। एमसीक्यू आ सकता है या आपसे कोई भी क्वेश्चन हो सकता है कि एलिमेंट का फंडामेंटल यूनिट क्या होता है, तो योर आंसर शुड बी एटम, ओके। इसके बाद साइंटिस्ट हैव डिस्कवर 118 एलिमेंट आउट ऑफ which 92 are natural while rest have been prepared artificially in laboratory। आज अभी तक 118 एलिमेंट डिस्कवर हो चुके हैं जिसमें से 92 के करीब नेचुरल हैं, बाकी
इसके अलावा आर्टिफिशियली लेबॉर्ट्रीज़ के अंदर प्रिपेयर्ड किए हुए हैं। ये भी आपने याद रखने स्टूडेंट इस बात को भी कि कितने आपके पास नेचुरल हैं और कितने आर्टिफिशियली प्रिपेयर्ड किए हैं और टोटल कितने एलिमेंट्स आपके पास डिस्कवर हो चुके हैं। ओके, नाउ स्टूडेंट हमने बात की थी कि फंडामेंटल यूनिट ऑफ एलिमेंट होता है एटम। अब ये एटम होता क्या है? एटम को इस तरह हम डिफाइन करेंगे, द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट दैट टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड एटम। एलिमेंट के अंदर एक छोटा ज़र्रा जो केमिकल रिएक्शन के अंदर हिस्सा लेता है उस चीज़ को बोलते हैं एटम। अब ये केमिकल रिएक्शन क्या होता है ये आप इंशाल्लाह आगे हम इसको आगे लेवल पे डिस्कस करेंगे। आगे यूनिट्स के अंदर हम इसको केमिकल रिएक्शन क्या क्या होते हैं इसको हम आगे डिटेल से देखेंगे। बहरहाल केमिकल रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन का लॉस होना, गेन होना या शेयर होना आता है। ईच एलिमेंट कंसिस्ट ऑफ वन काइंड ऑफ एटम। डी स्टूडेंट, हर एलिमेंट के अंदर फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास कार्बन है तो कार्बन के अंदर कार्बन के सेम एटम होंगे। अगर मेरे पास सोडियम है तो सोडियम के ही एटम होंगे, उसके अंदर सारे के सारे एटम सोडियम के ही होंगे। नेक्स्ट, एटम ऑफ एलिमेंट आर सेम विथ ईच अदर बट डिफरेंट फ्रॉम द अदर एटम ऑफ एलिमेंट्स। डियर स्टूडेंट, एक एलिमेंट के एटम आपस में बिल्कुल सिमिलर होते हैं लेकिन दूसरे एलिमेंट के एटम से टोटली डिफरेंट होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास सोडियम है तो सोडियम के अंदर जो एटम होंगे, सोडियम के जो एक ब्लॉक मैंने लिए उसके अंदर जो एटम होंगे वो बिल्कुल सारे सिमिलर होंगे एज़ कम्पेयर टू कार्बन। तो कार्बन के मुकाबले में सोडियम के एटम टोटली डिफरेंट होंगे। ओके, इसका मतलब ये हुआ कि हर एलिमेंट के एटम डिफरेंट होते हैं। डियर स्टूडेंट, बहुत छोटी छोटी और सिंपलेस्ट बातें मैं आपको बता रहा हूँ तो ये माइंड में रखनी है, ये आगे आपको बहुत हेल्प करेंगी। ये बेसिक लेवल है, इसमें आपने ये बातों को माइंड में रखना है। नेक्स्ट स्टूडेंट, हम जैसा कि एलिमेंट्स जो होते हैं उनको एक शॉर्ट अल्फ़ाबेट की मदद से शो करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम कहते हैं कार्बन तो उसको शो करते हैं सी से, नाइट्रोजन तो उसको शो करते हैं अल्फ़ाबेट एन से। तो इसको बोलते हैं सिंबल ऑफ एलिमेंट। तो ये सिंबल ऑफ एलिमेंट होता क्या है? 1814 में ब्रेजिलियस एक केमिस्ट था, इसने क्या किया कि एलिमेंट को सिंबल से रिप्रेजेंट किया। ओके, 1814 में ब्रेजिलियस एक केमिस्ट था, इसने एलिमेंट को उसके सिंबल से शो किया या रिप्रेजेंट किया। तो सिंबल क्या होंगे? द शॉर्टेस्ट नेम ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड सिंबल। ये डेफिनेशन याद रखनी है। व्हाट इज सिंबल ऑफ एलिमेंट? द शॉर्टेस्ट नेम ऑफ एलिमेंट इज कॉल्ड सिंबल। अब किस एलिमेंट को क्या सिंबल देना है उसके लिए 3-4 रूल हैं, हम उसको डिस्कस करते हैं। इन मोस्टली केसेस द फर्स्ट लेटर ऑफ द नेम ऑफ एलिमेंट इज टेकन एज अ कैपिटल लेटर एज अ सिंबल। डियर स्टूडेंट, इस पॉइंट का मतलब ये है कि मोस्ट ऑफ द टाइम जो एलिमेंट के जो नाम होते थे उस नाम का जो पहला वर्ड होता था, कैपिटल वर्ड होता था, उसको उसका सिंबल दिया गया। फॉर एग्ज़ाम्पल बोरान का पहला वर्ड क्या है? बी है और ये कैपिटल है तो इसको कैपिटल अगर लिखेंगे तो ये बोरान का सिंबल हो गया। इसी तरह कार्बन का पहला वर्ड क्या है? सी, तो सी। नाइट्रोजन का पहला वर्ड कैपिटल एन तो इसको एन से रिप्रेजेंट किया। ऑक्सीजन का कैपिटल पहला वर्ड ओ तो कैपिटल ओ से इसको ऑक्सीजन को रिप्रेजेंट, मोस्टली ऐसे एलिमेंट को रिप्रेजेंट किया गया। अब सेकंड पॉइंट स्टूडेंट,
In some cases where the first letter has already been used, then the initial letter in capital together with a small any other letter from its name is used. अब स्टूडेंट हमारे पास अल्फ़ाबेट ABC के अल्फ़ाबेट जो हैं ये इतने ज़्यादा तो नहीं है, 118 तो नहीं है, 118 से कम हैं। तो साइंटिस्ट ने क्या किया कि फॉर एग्ज़ाम्पल अल्फ़ाबेट एक मरतबा एलिमेंट के लिए यूज़ हो गए। फॉर एग्ज़ाम्पल कार्बन के लिए अल्फ़ाबेट C यूज़ हो गया, अब कैल्शियम के लिए क्या अल्फ़ाबेट यूज़ करना चाहिए? कैल्शियम भी C से ही आते हैं, CALCIUM। उसके लिए साइंटिस्ट ने ये सोचा कि उस एलिमेंट का जो नाम है उसका कैपिटल लेटर, पहला कैपिटल लेटर ही लिया जाए और उसके नाम में से कोई भी स्मॉल अल्फ़ाबेट लिया जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल से ये पॉइंट आपको इजीली क्लियर होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास कैल्शियम है, CALCIUM कैल्शियम। अब C ऑलरेडी यूज़ भी हुआ है, कार्बन के लिए यूज़ हुआ है, तो आप इसको ले लें CA। अब दूसरा जो वर्ड यूज़ करना है वो लिखना स्मॉल है और इसके नाम में से कोई भी वर्ड लेना है। कोई भी वर्ड A भी ले सकते हैं, L भी ले सकते हैं, C भी ले सकते हैं, I भी ले सकते हैं, U भी या M भी। तो साइंटिस्ट ने कैल्शियम के लिए CA लिया गया, मैग्नीशियम के लिए M पहला वर्ड, थर्ड वर्ड लिया गया G। इसी तरह अल्मुनियम के लिए A और उसका सेकंड वर्ड L लिया गया। आई होप दिस पॉइंट इज़ आल्सो क्लियर नाउ। तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है स्टूडेंट। पहला पॉइंट के एलिमेंट को सिंबल किस तरह देने, जो एलिमेंट का नाम है उसके वर्ड का पहला कैपिटल लेटर। सेकंड, अगर कैपिटल लेटर एक मरतबा यूज़ हुआ है तो फिर उसके नाम में से कोई भी दूसरा स्मॉल वर्ड यूज़ करना है। ओके, तो ये हमारे पास कुछ रूल हैं। एक और रूल है स्टूडेंट हमारे पास, बाज़ दफ़ा एलिमेंट ऐसे आ जाते हैं कि आपको ऐसा लगता है कि इसके नाम में से तो बिल्कुल ही वर्ड उठाए ही नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल गोल्ड, GOLD, गोल्ड में से इसका सिंबल होता है AU गोल्ड में से कहीं नहीं उठाया गया। कॉपर को अगर हम देखते हैं C तो उठाया हुआ है लेकिन U कहाँ से आया हुआ है। इसी तरह आयरन में F और E तो बिल्कुल है ही नहीं है, तो फिर FE सिंबल इसको क्यों दिया गया? तो इसका आंसर ये है स्टूडेंट कि ये जो कॉपर, गोल्ड, आयरन, पोटाशियम, एंटीमनी, टंगस्टन, इनके शुरू में ग्रीक नेम थे। जैसा कि गोल्ड का ग्रीक नेम था एरम, कॉपर का ग्रीक नेम था क्यूप्रम, इसी तरह आयरन का ग्रीक नेम था फेरम, पोटाशियम का नाम था कैलम, एंटीमनी का नाम था स्टिपमम और इसी तरह टंगस्टन का नाम था वुल्फ्रेम। अब इनके ग्रीक नेम से ये अल्फ़ाबेट उठाए गए हैं, जैसा कि AU, CU, FE, K, S, B यहाँ से उठाए गए और इसका सिर्फ W उठाया गया है। तो स्टूडेंट ये थे हमारे पास एलिमेंट क्या होता है और एलिमेंट के सिंबल क्या होते हैं। याद रखिएगा, द शॉर्टेस्ट नेम ऑफ एलिमेंट इज़ कॉल्ड सिंबल, और सिंबल को के लिए दो रूल मैंने बता दिए, उसको आपने माइंड में रखने हैं। उसके बाद चलते हैं स्टूडेंट कंपाउंड। नेक्स्ट टॉपिक है स्टूडेंट कंपाउंड। कंपाउंड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर बोर्ड एग्ज़ाम। इसको आपने ध्यान से समझना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कंपाउंड इज़ अ पेयर सब्सटेंस। फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ अ पेयर सब्सटेंस। Why it is a pure substance? Why it is not a mixture? It is a pure substance because it have definite properties and definite composition. Okay. Now, what is it? Compound is a pure substance. Okay, and consists of two or more different types of element. Okay. Compound, first of all it is pure substance, and second point
it is made up of two or more different types of element, not similar kind of element. ओके, कंपाउंड एक तो पेयर सब्सटेंस है, पॉइंट नंबर 2, ये डिफरेंट एलिमेंट की कम्बिनेशन से बनेगा, पॉइंट नंबर 3, केमिकली कंबाइन होना चाहिए एलिमेंट को, पॉइंट नंबर 3, एंड पॉइंट नंबर 4, उन एलिमेंट के बीच में फिक्स रेशो होनी चाहिए. ओके, कंपाउंड की डेफिनेशन को याद करने के लिए 4 पॉइंट हैं. फर्स्ट वन, इट इज़ अ पेयर सब्सटेंस. सेकंड, it is formed by the combination of two or more different element. Third, it is chemically combined, and fourth, in a fixed ratio by mass. Okay. Second point, element must undergo chemical changes in a compound. For example, compound जिन दो different एलिमेंट से बनता है, उन एलिमेंट के बीच में केमिकल चेंजेस ज़रूरी हैं. अगर केमिकल चेंजेस नहीं होंगी तो कंपाउंड नहीं बनेगा. फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं कहता हूँ कि वाटर इज़ अ कंपाउंड, वट H2O इज़ अ फर्स्ट ऑफ ऑल आप मुझे बताएं कि वाटर कंपाउंड है या नहीं. येस, इट इज़ अ कंपाउंड बिकॉज इट इज़ फॉर्म, इट कंसिस्ट ऑफ टू डिफरेंट एलिमेंट. ओके, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. नाउ element must undergo chemical changes. What is chemical changes? Loss, gain and sharing of electron is called chemical changes. If loss, gain or sharing of electron occur between two different elements, then chemical changes occurring between these atoms. Okay, and properties of compound are different from the element from which it is formed. याद रखिएगा, कंपाउंड जिन एलिमेंट से बनता है उन एलिमेंट की प्रॉपर्टीज़ और कंपाउंड की प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं वो टोटली डिफरेंट होती हैं. ओके, यू कैन से दैट द कंस्टिट्यूएंट फ्रॉम विच अ कंपाउंड इज फॉर्म लॉस देयर ओरिजिनल प्रॉपर्टीज़. ओके, बिकॉज इट अंडरगो केमिकल चेंजेस. पॉइंट नंबर 3, वाटर इज अ कंपाउंड, इट इज़ मेड अप ऑफ 2 हाइड्रोजन एंड 1 ऑक्सीजन. ओके, वाटर कंपाउंड है क्योंकि ये 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन से बनता है. द रेशो ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इज़ 2:1. आप देख सकते हैं कि वाटर के अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रेशो 2:1 होती है. याद रखिएगा, चेंजिंग द अबव रेशो विल गिव डिफरेंट कंपाउंड. अगर आप इस रेशो को चेंज करेंगे तो कंपाउंड कोई और कंपाउंड बनेगा. आप वाटर बना रहे हैं तो आपको चाहिए 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन बाय मास रेशो में ले लें. अगर आपने ये रेशो डिस्टर्ब कर दी, ज़्यादा कर दी, तो आपके पास कोई और कंपाउंड बनेगा. ओके, तो स्टूडेंट इंशाल्लाह कंपाउंड को अगले लेक्चर में फ़र्दर इसको डिटेल से देखेंगे और इसकी एग्ज़ाम्पल को भी देखेंगे. आज के लेक्चर में हम आज के मेन पॉइंट को रिवाइज करते हैं. डियर स्टूडेंट, in the today lecture we discuss about the definition of element. What is element? An element is a pure substance which cannot be split up into other simpler substance by any ordinary physical or chemical process. Second is the fundamental unit of element is atom. Scientists have discovered 118 elements, out of which 92 are natural while rest have been prepared artificially in laboratories. Note, each element consists of one kind of atoms, and atom of element are similar to each other but different from the other atom of elements. Point number 2, symbol of element. In 1814, Berzelius suggests the symbol for the representing element with symbol. The shortest name of element is called symbol. There are certain rules for assigning the symbol of element, which are: in some cases the first letter of the name of element is taken as a capital letter as a symbol. In some cases where the first letter was already been used, then the initial letter in capital together with a small any other letter from its name is used. Third main point is
compound. What is compound? Compound is a pure substance which consists of two or more different types of elements which are chemically combined together in a fixed ratio by mass. Element must undergo chemical changes in a compound. Point number third, properties of compound are different from the element from which it is formed. Water is a compound which is made up of 2 hydrogen and 1 oxygen. The ratio of hydrogen and oxygen is 2:1, and by changing this ratio, different compound will be formed. These are some of the main points of today's lecture. Now come to the homework. Dear student, आपका होमवर्क ये है कि आपने वर्कशीट के ऊपर पूरे लेक्चर को सेम टू सेम इसी तरह लिखना है, और आपने इस हर होमवर्क को लिखना है। इसके आपके 30% मार्क्स आपके एग्ज़ाम के अंदर इंक्लूड किए जाएंगे।